चलिए, so we are starting with the session. The first question for today's class is again related to section number 12. हमने लास्ट यहीं पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस किया था और वहीं से हम सेक्शन 12 से ही शुरू करेंगे. क्वेश्चन है आपके सामने that in computing a period of limitation for application to set aside an award, in computing the period of limitation to set aside an award, the time requisite in obtaining the copy of the award shall be excluded under which of the following section? It is 12 subsection 1, 2, 3 or 4. Okay, so as few of you have given me the answer, that is option number D should be there. ठीक है. So section number 12 subsection clause number 4 जो है that is related with this point कि जब भी हम period of limitation को calculate करते हैं और application व्यक्ति ने लगानी है to set aside an award, तो जितना time copy of the award लेने के लिए लगा है वो सारा time exclusion में मिलता है. Very good. अगले सवाल पे आते हैं. Next question is the limitation of filing an appeal. Limitation for filing an appeal commences from the date of judgment, the date of signing of the decree, the day of application for the copy of the judgment, or the date of availability of the copy of the judgment. Yes, quick. The limitation period for filing an appeal commences from, आप लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ आ रहे हैं, that is the date of judgment. Very good. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. देखो जो हमारा डेट ऑफ जजमेंट होता है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट इटसेल्फ आपका अपील का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है. अब दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, जैसे कि लेट मी टेल यू कि अगर हम स्केड्यूल एक बार देखें तो वहां पे एक छोटा सा एक चीज डिस्कशन में आ सकता है. जैसे हम अगर अपील्स वाले एरिया पे जाएं, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो अपील अगर फाइल करना है तो जनरली हम देखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री जो है हमारा टाइम शुरू होता है. बट इफ यू पीपल आर अवेयर विद द सीपीसी, तो हमारे ऑर्डर नंबर 20 के अंदर सीपीसी में ये मेंशन किया गया है कि जब भी आप जजमेंट ड्राफ्ट करते हैं, जजमेंट ड्राफ्ट करने के बाद डिक्री जब बनेगी तो डिक्री विल कैरी द डेट ऑफ द जजमेंट इटसेल्फ. तो इसीलिए जो हमारा अपील का जो टाइम शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ओनली. डिक्री की डेट जो होती है उसमें वही डेट लिखी जाएगी जो डेट ऑफ जजमेंट हुआ करता था. द डेट ऑफ द साइनिंग ऑफ द डिक्री समथिंग एल्स. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगले सवाल पे आते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन is the time requisite under section 12 clause 2 of the Limitation Act means the minimum time, maximum time, actual time taken or absolutely necessary time. section number 54 के अंदर क्वेश्चन नंबर 54 है जो पूछ रहा है कि सेक्शन 12 में सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली टाइम रिक्विजिट का क्या मतलब है. मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, एक्चुअल टाइम जो लगाया गया है, एंड लास्ट वन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टाइम. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, सो यू पीपल आर रेफरिंग ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल टाइम टेकन. वेरी गुड. एक्चुअल टाइम टेकन ही जो है वो टाइम रिक्विजिट सेक्शन नंबर 12 के अंदर जो है वो रखा गया है. इफ यू गो टू सेक्शन नंबर 12, तो लेट मी मेंशन ओवर हियर. Yeah, so explanation कह रहा है in computing under this section the time requisite for obtaining the copy of decree or order, any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for the copy thereof is made shall not be excluded. So ultimately the time requisite means the actual time taken. आगे का जो एरिया है that is talking about something else, but as far as the question is concerned, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है. अगले सवाल पे आ रहे हैं. The question is the time excluded has to be considered on the basis of, the time excluded has to be considered on the basis of just on the basis of option number A है information available from the copy of judgment or decree placed on record
information as to the copies obtained by the parties of the for court purposes, information as to the copies obtained by the party for other purposes, or information as to the copies not placed on record but made available to the court. Yes, time excluded has to be considered on the basis of which of the following thing? Question number 55, section number 12 से relate कर रहा है. And let me see how many of you can give me the right answer. जो हम टाइम को एक्सक्लूड करेंगे सेक्शन नंबर 12 के अंदर, जो टाइम डेट ऑफ रेकनिंग का टाइम है, डेट ऑफ जजमेंट का टाइम है, डेट ऑफ गेटिंग द कॉपी, द टाइम टेकन फॉर गिविंग द कॉपी ऑफ द जजमेंट का जो टाइम है या डिक्री के लिए जो टाइम लगा है, वो सारे टाइम को जो एक्सक्लूड करना है उसको कंसीडर करने के लिए हम किस चीज को, किस डॉक्यूमेंट को बेस बनाते हैं? इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉपी ऑफ द जजमेंट और डिक्री प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, information as to the copies obtained by the parties for court purposes, information as to the copies obtained by the parties for other purposes, or information as to the copies not placed on record but made available to the court. So आप लोग most of you are giving me the answer that is option number A should be there. Option number A is the very right answer. That is information available from the copy of the judgment or record placed will be considered for एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम. तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि जो इंफॉर्मेशन हमारी जो जजमेंट और डिक्री की कॉपी हमने कोर्ट के सामने रखी है, प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड जो हमने रखा है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि टाइम एक्सक्लूड कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा. अगला सवाल है सेक्शन 13 से, दैट सेक्शन 13 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू द सूट फाइल्ड इन फॉर्मा पॉपरिस, अपील फाइल्ड इन द फॉर्मा पॉपरिस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. सेक्शन नंबर 13 लिमिटेशन एक्ट सूट पे अप्लाई होगा, अपील पे अप्लाई होगा, दोनों पे होगा या किसी पे नहीं? यस, सेक्शन नंबर 13. ठीक है, सुरेंद्र सी ऑप्शन दिया है शायद. शिखा इज गिविंग मी द आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए. That is section number 13 of the limitation act applies to the suit filed in forma pauperis. ठीक है, forma pauperis means a person whosoever is the indigent person, a person who is the indigent person can make an application to the court so that court can give him some time to file the suit or the appeal etc. तो एक बार अगर section number 13 को आप एक बार internally go through करें तो लिखा है in computing the time period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where the application for leave to sue or appeal as a pauper has been made or rejected. So either it is the suit or it is the appeal. ठीक है, both the things are covered in section number 13. Is it clear? Yes, Shikha. Section number 13 के अंदर जो सूट और अपील है दोनों की बात की गई है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उसने इंडिजेंट पर्सन के तौर पे अपनी एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव करी कि उसको अलाउ किया जाए कि बिना कोर्ट फीस के उसका जो केस है वो कंटेस्ट करने दिया जाए, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है. तो जितना समय उसने वो एप्लीकेशन को कंटेस्ट करने में लगाया है वो सारा का सारा टाइम एक्सक्लूड होकर उसको मिल जाता है. एंड जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक है कि जिस डेट पे उसने एप्लीकेशन लगाया था उसी डेट पे उसका सूट आ चुका है, ऐसा हम प्रिज्यूम करके चलते हैं. और दूसरा अपील्स के केसेस में भी द सेम थिंग इज देयर. सो एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट सेक्शन नंबर 13 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, इट अप्लाइज टू द सूट्स एज वेल एज टू द अपील्स आल्सो. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अगला सवाल है that under section 13 of the limitation act the time is excluded if the application for leave to sue or appeal as a pauper is allowed, if the application for leave to sue as a pauper is rejected in both cases or in none of the case. Yes, section number 13 जो है उसमें टाइम एक्सक्लूजन की जो बात है वो किन सिचुएशंस पे अप्लाई की जाती है? यस, शालिनी आप ए कह रहे हैं when the application is allowed, so टाइम एक्सक्लूजन की जरूरत क्या पड़ेगी फिर उसे? यस, अभी मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक का हल्का सा जिक्र किया था, बट आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड दैट. देखो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से
सेक्शन नंबर 13 बड़ा सिंपल सा सेक्शन है कि आपको सेक्शन 13 में जब टाइम एक्सक्लूजन की बात आती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तब आपको एक्सक्लूजन चाहिए या एक्सेप्ट हो गई है तब आपको एक्सक्लूजन जो है वो चाहिए. सो लेट मी एक्सप्लेन इट. या सो देखो जैसे अगर हम ये कहें, ये इस तरह से आपको देखना है कि मान लीजिए ओवर हियर अ पर्सन गेट्स अ कॉज ऑफ एक्शन एंड हियर इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. ठीक है, ये इसका कॉज ऑफ एक्शन है एंड ओवर हियर इट इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. अब इसको सूट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर करना था, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को इंडिजेंट समझता है तो इसने यहाँ पे एक इंडिजेंट पर्सन के तौर पे अपने सूट को कंटेस्ट करने के लिए कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन जो है वो मूव किया. नाउ दिस एप्लीकेशन इज टू बी कंटेस्टेड फर्स्टली. यहां पे आके मान लीजिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट अलाउ कर देता है. ठीक है, अगर इसकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई कर देंगे. डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक जो ये कहती है कि जिस डेट पे इस व्यक्ति ने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी थी हम मान लेंगे कि उसी डेट पे सूट फाइल हो चुका था. ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर है कि अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक विल बी एप्लीकेबल. और वैसे तो देखो सूट यहां से शुरू होगा लेकिन हमने इसको रिलेट बैक कर दिया प्रीवियस डेट से. ऑन द डेट ऑन विच दिस पर्सन हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन इट विल बी प्रिज्यूम्ड एज इफ ऑन द सेम डेट द सूट हैज बीन फाइल्ड. तो यहाँ पे टाइम एक्सक्लूजन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम एक्सक्लूजन की बात नहीं है. इज इट क्लियर? यस शालिनी, यहाँ पे टाइम एक्सक्लूजन की तो बात ही नहीं आई. लेकिन टाइम एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो कब अप्लाई होता है आप वहां पे अगर देखें तो ओवर हियर देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, हियर इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ओवर हियर अ पर्सन फाइल्स एन एप्लीकेशन और अपील टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन. सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन देखना पड़ेगा कि कैसे किया जाएगा. ठीक है, कैसे सेक्शन 13 अप्लाई होगा. ये मान लीजिए इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे आके कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास किया और कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, जब रिजेक्ट कर दिया सो बिकॉज ही वाज कंटेस्टिंग दिस एप्लीकेशन विद द बोना फाइड इन ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि रिजेक्शन हुआ है तो आप ये व्यक्ति जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकता. द रीजन इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज ओवर, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन मींस व्हाट कि इसकी इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी. तो जितना टाइम इसने इस एप्लीकेशन को कंटेस्ट किया है उतना टाइम इसको हम एक्सक्लूड करके बाद में फिर से दे देंगे. ठीक है, तो इट इज टू बी कॉल्ड एज द टाइम इज whatever is the time it is to be excluded. ठीक है, जो टाइम इसने एप्लीकेशन को कंटेस्ट करने में लगाया वो टाइम एक्सक्लूड होके इसे मिला है. और दूसरी बात it is written. ठीक है, where the person has made the application and that application is rejected. ठीक है, तो over here the right answer as given by the other candidates that is option number B. ठीक है, then when the if the application to for leave to sue or appeal as a pauper is rejected. ठीक है, तो उसी केस में आपका सेक्शन नंबर 13 जो है वो अप्लाई होता है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अगले सवाल पे आते हैं. सेक्शन नंबर 14 and section number 5 of the Limitation Act are independent to each other, mutually exclusive of each other, both independent and mutually exclusive, neither independent nor mutually exclusive. Yes. Section number 14 and section number 5 are independent, mutually exclusive, both, or neither independent nor mutually exclusive. Yes, everyone. सेक्शन 14 एंड सेक्शन नंबर 5 थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा एप्लीकेशन इसकी देखेंगे दोनों प्रोविजंस की, देन आई होप दैट यू कैन गिव द बेटर आंसर.
ठीक है, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ यू आर गिविंग द आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्यू ऑफ यू आर गिविंग सी, फ्यू ऑफ यू आर गिविंग डी आंसर। देखो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दैट इज इट इज नीदर इंडिपेंडेंट और नॉट इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों ऐसा है? क्योंकि सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात कर रहा है, that whenever there is a sufficient cause the person has not filed the appeal or application within due time, so we can go for the extension and if the sufficient cause is being accepted by the court। दूसरी तरफ जो सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि आपने एक सिविल कोर्ट में या एक कंसर्न कोर्ट में जो केस है वो फाइल कर दिया, उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द जुरिस्डिक्शन the court cannot entertain the matter and hence आपको वो बाद में केस हुए किसी और कोर्ट में लगाना पड़ा। So ultimately we can't say that both of these provisions are independent and mutually exclusive। sometimes एक सिंपल सा एक उदाहरण आपको अगर मैं दूं तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक इनकॉम्पिटेंट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब उस कोर्ट के पास क्योंकि जुरिस्डिक्शन नहीं है तो लास्ट में उस कोर्ट ने ऑन द मैटर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन आपके केस को जो है वापस किया, प्लेट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब प्लेट आपको रिटर्न हो गया तो आप उसके बाद जो नई जो प्रॉपर कोर्ट है वहां पे जाओगे। तो प्रॉपर कोर्ट में जब आप गए लाइक दिस, ये सिचुएशन है, देखो दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन, हियर इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, यहाँ पे आपने सूट फाइल कर दिया इनकॉम्पिटेंट कोर्ट में, यहाँ पे आके आपका सूट जो है जो प्लेट है वो रिटर्न हो जाता है। तो आज के डेट में ये जो रिटर्न आपका हुआ है ये सेक्शन नंबर 14 के तहत इसका एक बेनिफिट हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि जब आपका ये प्लेट रिटर्न हो गया, नाउ यू विल गो टू द प्रॉपर कोर्ट, जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है वहां पे आप जाओगे, लेकिन प्रॉपर कोर्ट के पास आप जब गए सो इट इज बेसिकली द बार ऑफ लिमिटेशन। जब बार ऑफ लिमिटेशन है तो आपको सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा। सफिशिएंट कॉज की जब बात आएगी तो सेक्शन नंबर 5 आ जाएगा। और दूसरी चीज कि जितना टाइम आपने प्रीवियस कोर्ट में केस को कंटेस्ट किया है वो सारा का सारा टाइम आपको एक्सक्लूड होके मिलता है, इसलिए सेक्शन 14 का यूज होता है। तो क्या सेक्शन 5 और 14 आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते? क्या ये बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? द आंसर इज यस। व्हाट शुड बी द आंसर? इज सेक्शन 14 and section 5 are mutually exclusive or not? The answer is they are not mutually exclusive, rather they may be dependent upon each other। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन there may be certain kind of things जहां पे सेक्शन 14 और 5 दोनों की एप्लीकेशन एक साथ हो सकती है। अगले सवाल पे आते हैं। सेक्शन 14 के अंदर डिफेक्ट इन अ जुरिस्डिक्शन मस्ट रिलेट टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, pecuniary jurisdiction, subject matter jurisdiction, or either A or B or C। Section 14 भूल गए आप लोग? Yes, what kind of defect in the jurisdiction is there in section 14 जिसके कारण से आपका केस जो है उस कोर्ट में नहीं सुनाया जा सकता? टेरिटोरियल, pecuniary, subject matter, or either A or B or C। ठीक है, देखो when it comes to the defect of the jurisdiction as far as section number 14 is concerned, ठीक है, just give me few seconds। या तो ये लिखा है ना, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, whether the court of the first instance appeal or revision against the defendant shall be excluded where the proceedings relates to the same matter in issue and prosecuted in good faith in the court and from the defect of jurisdiction or other cause of like nature it is unable to entertain it। So when it is the defect of jurisdiction, तो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो तीनों तरह की जुरिस्डिक्शंस को कवर करता है। देयर इज अ टेरिटोरियल, पेक्यूनरी एंड द सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तीनों को ही हम एक साथ जो है वो लेके चलते हैं। अब वो एक अलग विषय, देखो एक कोर्ट ने
एक कोर्ट ने टेरिटोरियल या पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ना होते हुए कोई डिसीजन दे दिया है, तो उसकी एप्लीकेशन के लिए फिर उस डिसीजन का हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑर्डर नंबर 1, रूल नंबर 9, सेक्शन नंबर 99, वो सारी सीपीसी के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन के कारण से अगर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट जो है किसी केस को सुन रही है और बाद में आपका वो जो केस है वो वहां पे नहीं सुना जा सकता, तो आपको प्रॉपर कोर्ट में जाना है। सो जितना टाइम आपने वो डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन जनरल सेंस में लेके, लिटरल सेंस में लेके, जितना टाइम आपने उस कोर्ट के अंदर उस केस को चलाया था, ऑल दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो इधर इट इज द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और इट इज पेक्यूनरी और इट इज सब्जेक्ट मैटर, the three are to be covered। तीनों तरह के जुरिसडिक्शन में डिफेक्ट जो है वो यहाँ पे सेक्शन 14 में कवर होगा, क्योंकि देखो जब भी वर्ड जुरिसडिक्शन आता है ना तो तीनों को हम कोरिलेट करके चलते हैं। बट फिर वो एक अलग बात है कि जैसे आप लोगों ने सीपीसी पढ़ा हुआ है, तो सेक्शन नंबर ऑर्डर 1 रूल नंबर 9 के अंदर या फिर सेक्शन नंबर 99 के अंदर जितना भी हमने जो ब्रॉडर सब्जेक्टिव डिस्कशन किया है वो एक अलग विषय है। ठीक है, कि टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस का जो डिफेक्ट है वो एक अलग तरीके से देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर का एक अलग तरीके से देखते हैं, इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन अलग चीज होती है। सो ऑल दैट थिंग्स आर डिफरेंट। बट सेक्शन 14 के अंदर जो जुरिसडिक्शन वर्ड है इसको हम लिटरल सेंस में अप्लाई करते हैं। हेंस द 3 टाइप ऑफ जुरिसडिक्शंस आर टू बी कवर्ड। तीनों तरह का डिफेक्ट अगर यहाँ पे मिल जाए तो सेक्शन नंबर 14 की एप्लीकेशन हो सकती है। अगला सवाल, सेक्शन 15 एक्सक्लूड्स फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड ऑफ नोटिस, time taken in granting previous consent, time taken in grant of sanction, or all of them. Section 15 excludes the computation of limitation, period of notice जो है क्या वो exclude होगा, time taken in granting previous consent, time taken in granting previous sanction, etc. या all of the above. Section number 15 से आपका सवाल, question number 60. ठीक है, सो यू पीपल आर गिविंग मी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्टली फाइन। कि कभी भी आपको सूट फाइल करने के लिए अगर कोई नोटिस पीरियड देने की जरूरत है तो वो नोटिस पीरियड का जो टाइम है वो लिमिटेशन की कंप्यूटेशन से बाहर होता है। कभी किसी के ऊपर केस करने के लिए किसी अथॉरिटी का कंसेंट चाहिए या सैंक्शन चाहिए, तो जब तक वो कंसेंट या सैंक्शन नहीं आएगा आप केस नहीं कर सकते, और जितना भी टाइम कंसेंट और सैंक्शन लेने के लिए लगा है वो सारा टाइम एक्सक्लूजन में आता है। अगला सवाल, Section 15 does not applies to suits, appeals, execution applications, or none of them. Section 15 does not applies to suits, appeals, execution applications, or none of the above. ठीक है, does not applies की बात आ रही है, does not applies। ठीक है, it does not applies to which of the following। ठीक है, सो आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम यू पीपल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेक्शन नंबर 15 जो है हमारा जो नोटिस पीरियड एक्सेट्रा की बात करता है, जो टाइम एक्सक्लूजन में आपको मिलता है, तो वो सिर्फ सूट्स और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस पे अप्लाई होंगे। रेदर अपील्स पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट, तो वो साथ में ही चलता है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। So next question is question number 62, that period during which the proceedings stand stayed by an injunction or order is excluded under 14, 15, 13 और 16। अगर कोई प्रोसीडिंग्स किसी स्टे ऑर्डर के कारण से रुकी हुई है तो वो जितना समय स्टे या इंजंक्शन रहा है वो किस सेक्शन के अंदर एक्सक्लूड होगा, 14, 15, 13 और 16। ठीक है, सो एज यू पीपल आर गिविंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 15 के अंदर इट इज टू बी एक्सक्लूडेड, इट इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। सेक्शन नंबर 15, चलो ये तो हो ही गया, इट अप्लाइज टू बोथ सूट्स एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज द टाइम टेकन इन द प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड द सेल in suit for possession by purchaser in execution is liable to be excluded under 15, 4, 2, 3 और 1। yes, ये बड़ा एक इलेबोरेटिव कॉन्सेप्ट है। आप लोग मेरे ख्याल से कॉपीज रजिस्टर्स जब उठा के पढ़ते होंगे तो यू कैन रिकलेक्ट एवरीथिंग, बट अभी तो हम यहाँ पे इसमें इतना डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाएंगे।
बट फिर भी चलिए लेट अस सी दैट व्हाट ऑब्जेक्टिविटी इज देयर। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, time taken in the proceedings to set aside sale in a suit for the possession by the purchaser in execution is liable to be excluded under section 15 clause number 4। ठीक है, clause 4 में अगर आप देखें तो ये लिखा होगा, ठीक है, in computing the period of limitation for suit for the sale possession by the purchaser in sale in execution of a decree, the time during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded। ठीक है, ये बहुत ही एक डिटेल्ड एरिया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सेक्शन 16 जो है वो किस चीज पे अप्लाई करेगा? इट अप्लाइज टू द सूट्स टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर द इन्फोर्सिंग अ राइट टू अ हेरिडिटरी ऑफिस और नन ऑफ द अबव। सेक्शन 16 अप्लाइज टू सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना है, हेरिडिटरी ऑफिस के लिए रिलेटेड कोई राइट है, या किसी पे भी सेक्शन 16 की एप्लीकेशन जो है वो नहीं होती है। एंड एज यू पीपल आर रेफरिंग टू द आंसर, बहुत ही सही जवाब दिया है। सेक्शन नंबर 16 के सबसेक्शन 3 से हम रिलेट करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है या राइट टू सू जो है वो ऑपोजिट पार्टी की या व्यक्ति की डेथ पे ही अराइज होता है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन्स राइट टू सू arises on the date of his death, ठीक है, तो फिर जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास उतना ही समय रहता है जितना टाइम उस व्यक्ति के पास नेचुरली होना चाहिए था। लेकिन राइट फॉर सूट फॉर द इन्फोर्सिंग द प्रीएम्पशन, सूट फॉर द पोजेशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी या हेरिडिटरी ऑफिसेस के लिए ये जो प्रिंसिपल है ये काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 इसको एक्सक्लूड करता है, एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल, Section 17 takes within its ambit fraud, mistakes, concealments or all of them। सेक्शन नंबर 17 के अंदर किन चीजों को कवर किया गया है? ठीक है, सो few of you have given me the right answer, that is option number D, all of the above। section 17 fraud, mistakes और concealment तीनों को भी कवर करता है। अगर फ्रॉड, मिस्टेक या कंसीलमेंट, छुपाने के कारण से आपको पता ही नहीं लगा कि आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका था या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने का आपका टाइम आ चुका था और आप नहीं कर पाए, तो जब आपको फ्रॉड, मिस्टेक या वो कंसीलमेंट का पता लगेगा, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट योर कॉज ऑफ एक्शन योर टाइम पीरियड विल स्टार्ट रनिंग। ठीक है, अगला सवाल, सेक्शन 17 of the Limitation Act does not applies to the criminal proceedings, civil proceedings, execution proceedings or both A and C। सेक्शन नंबर 17 किस चीज पे अप्लाई नहीं करता? यस, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर रहे हो? यस शिखा, शालिनी, व्हाट यू आर डूइंग? यस, सेक्शन नंबर 17 क्या एग्जीक्यूशन पे नहीं अप्लाई होता? यस, अगर आप देखें तो सेक्शन 17 का फर्स्ट पोर्शन जो है वो सूट्स की बात कर रहा है, और वहीं पे जो इसका सबसेक्शन 2 है वो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री की बात कर रहा है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से दैट द सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू द सिविल एज वेल एज द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, बट इट डज नॉट अप्लाइज टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 67 में द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इज इट क्लियर? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सेक्शन 17 से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जहां तक बात है सिविल प्रोसीडिंग्स की और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की, तो फ्रॉड होने के कारण से अगर एक व्यक्ति को उसके राइट टू सू, एक केस फाइल करने का जो उसका अधिकार है, अगर उसका पता नहीं लगता है, तो जब उसको फ्रॉड, मिस्टेक या कंसीलमेंट का पता लगेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन फाइल अ सूट। ठीक है, समय जो है, समय सीमा सेक्शन 17 के अकॉर्डिंगली चलेगी। और दूसरा, एग्जीक्यूशन अगर आपको इनिशिएट करना था और आपको किसी कारणवश, किसी मिस्टेक, फ्रॉड के कारण से नहीं पता लगा कि एग्जीक्यूशन आप कर सकते थे डिक्री का, तो वहां पे भी आपको जो है सेक्शन 17 कुछ एक टाइम जो है देता है। कितना टाइम देता है उससे रिलेटेड कुछ एक सवाल आएंगे तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है, द फ्रॉड कंटेम्पलेटेड by section 17 limitation act is that of plaintiff, defendant, थर्ड पर्सन और इधर ए और बी और सी। सेक्शन 17 के अंदर जो फ्रॉड की बात की गई है वो फ्रॉड किसने किया था?
Yes, who has committed the fraud because of which you does not know that you can file a civil suit? Yes, is it defendant, plaintiff, third party or any other person? The right answer is option number B, that is the defendant. ठीक है, very good. अगले सवाल पे आ रहे हैं. क्वेश्चन है whether a plaintiff could with reasonable diligence have discovered the fraud or mistake under 17 is a question of fact to be decided on the basis of the facts disclosed by each case, question of law, mixed question of fact and law or substantial question of law. ये एक समस्या है, सवाल है कि प्लेंटिफ को फ्रॉड या मिस्टेक के बारे में रीजनेबल डिलीजेंस से पता लग सकता था. तो ये जो चीज है ये किस तरीके का सवाल है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मिक्स क्वेश्चन है या सब्सटेंशियल क्वेश्चन? यस, चलो गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 17 में अभी ठीक से पढ़ाई नहीं की. ठीक है, सेक्शन 17 देखो, सेक्शन 17 में जैसे भी मैंने आपसे डिस्कशन किया, ठीक है, कि हमारा सेक्शन 17 फ्रॉड, मिस्टेक और कंसीलमेंट्स की बात करता है, लेकिन रीजनेबल डिलीजेंस से फ्रॉड डिस्कवर हो सकता था या नहीं हो सकता था. इस चीज को लेके अगर कोई भी सवाल कोर्ट के सामने आता है तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. प्लेंटिफ ये प्रूव कर सकता है कि डिस्पाइट ड्यू डिलीजेंस ही वाज नॉट एबल टू डिस्कवर द फ्रॉड, मिस्टेक एटसेट्रा. तो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ नहीं है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी नहीं है, रादर इट इज ऑल टुगेदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. चलिए अगले सवाल पे आते हैं. ठीक है, दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन सेक्शन 17 बट इट इज टू बी अज्यूम्ड लाइक दैट. अगला सवाल है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, दैट लिमिटेशन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ मिस्टेक, the date of discovery of mistake, either A or B depending upon the facts and the circumstances, either A or B as per the discretion of the court. सेक्शन 17 के अंदर लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होता है? मिस्टेक की डेट से, डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द मिस्टेक से, इधर ए और बी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के आधार पे कोर्ट देख लेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि कब से शुरू करना है. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द मिस्टेक इज द राइट आंसर, फ्रॉम द डेट व्हेन द मिस्टेक इज डिस्कवर्ड. ठीक है, लिखा है ना, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड और मिस्टेक. सो the moment he discovered the mistake, at that point of time the limitation period will start running. ठीक है, अगला सवाल अगेन सेक्शन 17 से है. क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट, the limitation shall start running from the date of mistake, the date when the mistake with due diligence could have been discovered, whichever is earlier or whichever is beneficial to a suitor. Yes, बहुत ही सिंपल सवाल है, मेरे ख्याल से everyone can give me the answer. शालिनी आप ए कह रहे हो, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से पढ़ेंगे. ऑप्शन नंबर बी. सर माइंड में बी था लेकिन टाइप ए कर दिया. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है that the period of limitation shall not begin until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or could with reasonable diligence has discovered in the case of concealed document until the plaintiff or applicant has first the means of producing the concealed document or compelling its production. ठीक है, so the right answer to this particular question is option number B again. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन है, सेक्शन 17 अप्लाइज टू, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इट अप्लाइज टू द सूट्स एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. या क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे सामने. अंडर सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट दिमाग में आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट की बात आती है. पेमेंट बाय चेक व्हिच इज डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन अमाउंट्स टू पार्ट पेमेंट shall save limitation. Payment by check which is dishonored on the presentation does not amount to part payment and will not save the limitation. Mere handing over a check which is dishonored on the presentation amounts to the acknowledgement on either A or C. Yes, सवाल समझ गए? होता क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे से उधार ले रखा है, तो जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है, the person whosoever is the creditor,
तो क्रेडिटर को उस पैसे को वापस लेने के लिए कुछ एक समय सीमा है 3 साल। तो जिस दिन उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है उससे 3 साल के अंदर अंदर उसे अपने पैसे की रिकवरी का केस करना होता है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति उस 3 साल के पीरियड के अंदर थोड़ी बहुत अगर पेमेंट कर देता है, पार्ट पेमेंट भी कर देता है, तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंगली आपको दोबारा से उस डेट ऑफ पार्ट पेमेंट से एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो मिल जाता है। तो सवाल कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति ने पार्ट पेमेंट के तौर पे आपको एक चेक दिया लेकिन चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या वो पार्ट पेमेंट मानी जाएगी और क्या लिमिटेशन का जो एक्सटेंशन है पीरियड का, क्या वो होगा या नहीं होगा? इस चीज से आपका सवाल रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी कुछ एक लोगों ने कहा है, शालिनी आप बी कह रहे हैं। देखो सेक्शन नंबर 19 के अकॉर्डिंगली अगर एक व्यक्ति ने पेमेंट ऑफ चेक किया लेकिन वो चेक डिसऑनर हो चुका है ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो लिमिटेशन पीरियड आगे एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि वो पार्ट पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट पेमेंट एंड देयरफॉर the limitation period will not be extended by that. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी should be the right answer. सिर्फ चेक देना और पार्ट पेमेंट होना दोनों में फर्क है। सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बड़ा सिंपल है, जस्ट देखो सेक्शन नंबर 19 है ना, पार्ट पेमेंट की बात कर रहा है। लिखा है वेयर द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट और इंटरेस्ट ऑन द लीगेसी इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बाय द पर्सन लायबल टू पे द डेट और लीगेसी और बाय हिज एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन shall be computed from the time when the payment was made। क्या चीज है, इस तरह से देखो कि ओवर हियर मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए का लोन दे रखा है और दिस इज द डेट ऑन विच द रीपेमेंट इज टू बी डन। आज ये तारीख पे रीपेमेंट होना था, रीपेमेंट नहीं हुआ, तो यहां पे आ गया पार्टी के पास कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लाइक ए इज अ क्रेडिटर एंड बी इज अ डेटर। ए ने मान लो बी को पैसा दे रखा है, ए इज अ क्रेडिटर, बी इज अ डेटर, तो इस डेट पे पैसा वापस करना था और अगर नहीं किया है तो ए के पास जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो इसका शुरू हो गया प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और 3 साल का पीरियड है, 3 साल के अंदर अंदर इसे जो है केस करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए ने अभी तक केस नहीं किया था लेकिन बी ने यहां पे आके 2,000 रुपया मिस्टर ए को पे कर दिया, तो ये जो 2,000 हुआ इट इज अ पार्ट पेमेंट ऑफ द मनी। ठीक है, जब पार्ट पेमेंट हुआ तो इस पर्टिकुलर डेट से अगेन मिस्टर ए के पास 3 साल का समय और इसको मिल जाता है पैसे की रिकवरी के लिए। ठीक है, तो दिस इज द डेट ऑन विच द पार्ट पेमेंट इज डन, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट रनिंग। ये है सेक्शन नंबर 19 का प्रिंसिपल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, जैसे यहीं पे एग्जांपल उठा लेते हैं कि ए ने बी को उधार दे रखा है, बी ने मिस्टर ए को एक चेक दिया लेकिन वो चेक जो था बैंक में ए लेके जाता है लेकिन चेक डिसऑनर हो जाता है, तो क्योंकि चेक डिसऑनर हो चुका है तो इट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज अ पार्ट पेमेंट, ये पार्ट पेमेंट नहीं है। तो ए को अपना केस जो ऑलरेडी जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड चल रहा था उसके अंदर ही रिकवरी ऑफ द मनी के लिए करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली the question which is asked over here. Clear? ठीक है, coming to the next। लेकिन जैसे यहाँ पर इसमें चेक, हाँ पूछिए सर। एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ पूछिए। लेकिन सर तो सर चेक जो है वो सर जैसे ए ने चेक शनी, I'm not getting your voice। या तो लिख के आप अगर मेंशन कर सकते हैं तो you can go for that। ठीक है, आप अपना जो भी क्वेरी है वो लिख के भेजिए। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट टाइम।
अगला सवाल लोगों के सामने जो है दैट इज रिलेटेड विद द एक्नॉलेजमेंट, कि एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वैलिड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, it must be made before the expiration of the period of limitation, it must be signed by the person concerned in the handwriting of the person concerned। इन चार में से कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरी नहीं है? Yes, question number 75 related with section number 18, it must be signed by a person, or it must be in the handwriting of a person, or it must be in writing, or it must be made by a person before the expiration of the period of limitation। तो section number 18 के first paragraph में it is written that where before the expiration of the period of limitation for a suit or application in respect of any property or right and acknowledgement or liability in respect of property or right has been made in writing and signed by the party against whom the property or right is claimed, or by any other person through whom he derives his title or liability, a fresh period will start running। So एक व्यक्ति की अपनी हैंडराइटिंग में एक्नॉलेजमेंट होना जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, शनि यू आर आस्किंग फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन ना। प्रीवियस क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि पार्ट पेमेंट की जब बात आती है तो देयर मस्ट बी द एक्चुअल पेमेंट टू द कंसर्न्ड पर्सन। आपने अगर एक व्यक्ति से लोन ले रखा है और टाइम पे अगर पेमेंट नहीं किया, ठीक है, इफ यू हैव नॉट रीपेड द डेट विद इन टाइम, तो उस क्रेडिटर के पास 3 साल का समय है केस फाइल करने की। ठीक है, रिकवरी ऑफ द मनी का जो सूट वो फाइल करेगा। अब 3 साल के अंदर उस व्यक्ति ने आपको एक चेक भेज दिया, आपने वो चेक रिसीव किया, तो ओनली बाय मेयरली रिसीविंग अ चेक, ओनली बाय मेयरली रिसीविंग अ चेक, इट इज नॉट दैट द पार्ट पेमेंट इज डन। रेदर आप वो चेक अगर बैंक में लगाते हैं, बैंक आपको इन कैश करके पैसा देता है, तब हम कहेंगे पार्ट पेमेंट हुआ है। अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो इट इज नॉट द पार्ट पेमेंट। ठीक है, तो देयर शुड बी द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द मनी। इफ देयर इज नो सच पेमेंट, you will the limitation period will not freshly start against that person, rather you have to file the suit within that much limitation period which is already given by the law। ये चीज है। ठीक है, अगले सवाल पे आ रहे हैं। अच्छा ये तो कर ही लिया, क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन नंबर 22 refers to the cases of continuing breach of contract, successive breach of contract, both or neither continuing nor successive breach। yes, सेक्शन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सवाल है, बाउंटी कलेक्ट करने वाले क्वेश्चन है ये। सेक्शन नंबर 22 रिलेट्स टू द कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंटिन्यूएशन में रहते हैं और कंटिन्यूइंग ब्रीच उस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो देखी जा सकती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन नंबर 22 जो है वो उससे रिलेट करता है। ठीक है, और हर बार जब वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की जाएगी तब तब आपके पास नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज section number 25 of the easement right, under section number 25 the easement rights are acquired by the continuous and uninterrupted user for 12 years, 20 years, 30 years or 3 years। yes, what should be the continuation of the period? it is yes, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग आ रहे हैं, दैट इज 20 इयर्स पीरियड। वेरी मच फाइन। 20 इयर्स का जो पीरियड है, अगर उस समय तक एक व्यक्ति कॉन्टिन्यूअसली, अनइंटरप्टेडली, ओपनली एक प्रॉपर्टी पे अपने इजमेंटरी राइट्स को एंजॉय करता है, तो उसका वो जो राइट है वो प्रिस्क्रिप्शन का राइट बन जाता है। नाउ दैट राइट कैन नॉट बी टेकन बाय एनी अदर पर्सन। अगला सवाल, सेक्शन नंबर 25 under section 25 the easement rights over the property belonging to the government are acquired by the continuous and uninterrupted user for 12 साल, 20 साल, 30 साल या 60 साल। yes, how much time? it is 30 years period। yes, so option number C is the right answer। very good। अगले सवाल पे आ रहे हैं। a suit against the obstruction in the enjoyment of the easementary rights acquired under section 25 must be filed within 2 years of obstruction, within 1 year of obstruction, within 3 years of obstruction, within 12 years of the obstruction। yes, a suit against the obstruction in the enjoyment of the property acquired
अंडर सेक्शन 25 मस्ट बी फाइल्ड विद इन हाउ मच टाइम? 2 years. ठीक है, 2 साल का समय है, 3 साल नहीं है शालिनी, काइंडली को करेक्टेड, 2 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है, शो यू। ठीक है, तो ये लिखा ना सबसेक्शन 2 में, each of the said periods of 20 years shall have been taken to be the period ending within the 2 years next before the institution of the suit. The 2 years period is there. अगर कोई भी व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, सूट अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द एंजॉयमेंट ऑफ इजमेंटरी राइट, तो वो सूट आपको 2 साल के अंदर अंदर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो मैं एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे इजमेंटरी राइट्स जनरेट करता हूँ, 20 साल से मेरा प्रॉपर्टी पे इजमेंटरी राइट जो है वो चल रहा था, तो मेरा वो जो राइट है वो एक तरह से एस्टैब्लिश्ड राइट है। और एक व्यक्ति ने अगर ऑब्स्ट्रक्शन, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक अगर उसने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट मुझे अपना जो केस है वो 2 साल के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। दैट इज द लॉ। ठीक है, अगर आप 2 साल के अंदर केस फाइल नहीं करते तो इट विल बी टाइम बार्ड। अगला सवाल है विच इज करेक्ट? लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी, लिमिटेशन एक्सटिंग्विशेस द राइट, लिमिटेशन इज अ सब्सटैंटिव लॉ, लिमिटेशन बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट आपको लगता है? यस, इज लिमिटेशन इज द सब्सटैंटिव लॉ? यस, कसक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रेज योर हैंड। ठीक है, सो लिमिटेशन, हाँ, लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी, ये बिल्कुल सही है कि आपको जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रखा गया है लॉ के अंदर, अगर उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में आप केस नहीं करते हैं तो लिमिटेशन लॉ जो है आपके ऊपर स्टेन लगा देगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका राइट एक्सटिंग्विश हो चुका है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है, लिमिटेशन इज अ सब्सटैंटिव लॉ, नो, लिमिटेशन इज जनरली अ प्रोसीजरल लॉ, बट 2-3 सेक्शन लाइक सेक्शन नंबर 25 से लेकर 27 तक का एरिया है वो सब्सटैंटिव एरिया जो है वो जरूर रहता है। लिमिटेशन बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, आंसर इज नो, लिमिटेशन जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज को बार नहीं करता है। अगला सवाल, which is not correct for the law of limitation? Limitation bars the judicial remedies, it is an adjective law, it extinguishes the rights, and limitation is a procedural law. Which of the following is not correct? Yes, which of the following is not correct? ठीक है, so ऑप्शन नंबर सी आप कह रहे हैं लिमिटेशन extinguishes the right, ये ठीक नहीं है। लिमिटेशन law does not extinguishes your right, it only bars the judicial remedies. ठीक है, अगली भी इसी तरीके से एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडीज, यस, क्या ये सही है या नहीं है? लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडीज इज करेक्ट। लिमिटेशन इज नेगेटिव इन इट्स ऑपरेशन, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। और लास्ट ऑप्शन इज लिमिटेशन बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ये जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है, लिमिटेशन डज नॉट बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 82 है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सूट फॉर द पोजेशन बेस्ड ऑन द राइट ऑफ प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन द टाइटल, प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन द टाइटल कैन बी फाइल्ड विद इन 1 year, 3 years, 12 years और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। यस, अ सूट, ये वैसे तो एसआरए का कोरिलेशन आता है, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन का जो एक कोरोलरी है जो एक साथ इनको पढ़ा जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A suit for the possession based on the right of a previous possession and not on title can be filed. Yes, गड़बड़ कर जाओगे, गड़बड़ कर जाओगे। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 83 देखो, अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट के एरिया में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो इसका सवाल जो है वो शेड्यूल के आर्टिकल नंबर 64 से हमें उठाना और 12 साल का जो टाइम है वो वहां पे आएगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 ऑफ द एसआरए रेड टुगेदर विद सेक्शन आर्टिकल नंबर 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट दोनों साथ में चलते हैं और 12 साल के अंदर अंदर आप जो है वो केस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आता
तो वहां पे हम इसमें दो ऑप्शंस पे सही उतर सकते थे। वन इज द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, जो कि आपका सेक्शन नंबर 6 SRA का पोर्शन है, और 12 साल का पीरियड जो सेक्शन नंबर 5 रेड टुगेदर में आर्टिकल नंबर 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट की बात करता है। लेकिन क्योंकि ये सवाल आपका लिमिटेशन एक्ट के अंदर आया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी शुड बी देयर, क्योंकि जो 6 months ऑफ द डिस्पोजिशन की बात है, देयर इज अ स्पेसिफिक रिलीफ to be availed under the specific relief act। ठीक है, तो वहां पे भी आप डेफिनेटली प्रीवियस पोजीशन के बेसिस पे ही अपना केस करते हो, लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक रिलीफ है एसआरए के अंदर, तो आपको वैसे तो इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था कि सर सी और डी दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं। तो एक जो जस्टिफिकेशन है वो ये है, क्योंकि लिमिटेशन का सवाल है, तो आर्टिकल 64 से हम इसका आंसर जो है वो उठाते हैं। अगला क्वेश्चन, a suit for the possession of immovable property based on title can be filed within 1 year, 3 years, 12 years or 6 months। Yes, if you have a title over the property, then it can be filed within 12 years period। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज देयर। ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आ रहे हैं, a suit filed by or on behalf of the central government or any state government, the period of limitation is 1 year, 3 year, 12 year और 30 years। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको केस करना है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना रहेगा? इट विल बी 30 years पीरियड। 30 years पीरियड, वेरी गुड। अगले सवाल पे आ रहे हैं, in England the law of limitation can be waived by the party entitled to the benefit thereof, is indefinite and flexible, is variable or all of the above। Yes, in England the law of limitation can be waived by the party entitled to the benefit, is indefinite and flexible, is variable and all of the above। इसमें कैसा कह रही है सर, आइडिया नहीं है। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इंग्लैंड में जो लिमिटेशन के जो रूल्स हैं वो इतने ज्यादा रिजिड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो पार्टीज के ऑप्शन पे होते हैं। पार्टीज वेव करना चाहे तो वेव भी कर सकती हैं, इंडेफिनिट है, फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इंग्लैंड में जो लॉ ऑफ लिमिटेशन थोड़ा सा हमारे इंडियन लॉ से मैच नहीं करता। ठीक है, अगला सवाल, द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज लेक्स लॉसी, लेक्स फॉरी, नॉन ऑब्स्टेंटे एंड ऑल ऑफ दीज। लॉ ऑफ लिमिटेशन कैसा कानून है? इट इज लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द फोरम, नॉन ऑब्स्टेंटे लॉज और ऑल ऑफ दीज। ओवरराइडिंग प्रोविजन है, ये सब कुछ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लॉ ऑफ द फोरम। लेक्स फोरी जो है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन हमारा रहता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 से उठ रहा है, section number 21, sorry। Under section 21, a suit is deemed to have been instituted in the case of new plaintiff impleaded or added। अगर एक केस में नया प्लेंटिफ ऐड हुआ है या इम्प्लीडमेंट करवाई गई है सीपीसी के अकॉर्डिंगली, तो कब माना जाएगा उस व्यक्ति के अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है? ऑन द डेट ऑन विच द न्यू प्लेंटिफ वाज इम्प्लीडेड, on the date on which the suit was initially instituted, on the day on which the application for impleading a new plaintiff was made, or none of the above। Yes, it's question number 88, option number A जो है that is the right answer, option number A। ठीक है, on the date on which the new plaintiff is impleaded, from that date it will be deemed as if that person is made as a party। ठीक है, तो आप अगर सेक्शन नंबर 21 एक बार देखें तो ब्रीफ में लिखा हुआ है, where after the institution of a suit a new plaintiff or defendant is added as regards him be deemed to have been instituted when he was so made a party। तो जिस दिन वो व्यक्ति पार्टी बना, जब उसकी इम्प्लीडमेंट हुई, उस दिन उसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन वहीं पे इसका जो सबसेक्शन 2 है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस करी हैं, आई होप यू कैन रिकलेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, अगला सवाल, अंडर सेक्शन 21, a defendant a suit is deemed to have been instituted against newly added defendant on the day on which the new defendant is impleaded, on the date on which the suit was initially instituted, on the day on which the application of impleadment of new defendant was made, or none of the above। Again the answer is option number A कि डिफेंडेंट के लिए भी जो को डिफेंडेंट बनाया गया है उसी दिन इम्प्लीड होगा जिस दिन उसको हमने पार्टी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 89 का भी जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल,
अगेन क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 21 से है. अंडर सेक्शन 21 can the court direct the suit to have been instituted on an earlier date? क्या कोर्ट जो है ये डायरेक्शन दे सकता है? कैन अ कोर्ट डायरेक्ट द सूट टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अर्लियर डेट? Yes, option है yes. If the omission to include a party was due to mistake made in good faith, yes. If the omission to include a party was deliberate, both A and B, or neither A nor B. Yes, question number 19. Option number A जो है आप लोग मार्क कर रहे हैं. Option number A is the right answer. आप अगर इसके प्रोवाइजो में जाएंगे, सेक्शन नंबर 21 सेक्शन 1 प्रोवाइजो में जाएंगे तो लिखा हुआ है, when the court is satisfied that the omission to include a new plaintiff or defendant was because of mistake, so it will be deemed as if that he is against him the suit is instituted on an earlier date. ठीक है, option number A is the right answer. 91st question, सेक्शन नंबर 21 से रिलेट कर रहा है. सेक्शन नंबर 21 does not apply in the cases of adding of new plaintiffs for the first time, cases for adding new defendant for the first time, cases for transposition of the parties, neither A nor B nor C. सेक्शन नंबर 21 कब अप्लाई नहीं होता है? कब अप्लाई नहीं होता है कसर? यस, सेक्शन नंबर 21 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply where the party is substituted owing to the assignment devolution of any interest. तो अगर कभी भी ट्रांसपोजिशन होती है पार्टीज की कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बनाया, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया है, परफॉर्मा डिफेंडेंट था उसको आपने प्लेंटिफ बनाया है, तो उन सारी सिचुएशंस में जब ट्रांसपोजिशन किया जाता है सीपीसी के अकॉर्डिंगली, ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली, तो वहां पे सेक्शन नंबर 21 जो है हमारा उसका सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल, सेक्शन 21 डज नॉट अप्लाई, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैनेज करना है. जस्ट ये जो लिखा है ना सेक्शन 21 डज नॉट अप्लाई, तो इसके आगे ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है? इट इज रॉन्ग है ना. लिखना है सेक्शन नंबर 21 डज नॉट अप्लाई in the cases of devolution of interest due to the pendency of the suit, in the cases of assignment during the pendency of the suit, cases of transposition of the plaintiff or defendant, or vice versa, or all of the above. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये बीच में अननेसेसरी आया है. ठीक है, सेक्शन नंबर 21 डज नॉट अप्लाइज इन ऑल ऑफ दीज केसेस. ठीक है, डिवोल्यूशन, असाइनमेंट या ट्रांसपोजिशन के बेसिस पे अगर पार्टीज में कुछ इंटरचेंजिंग हुई है उसमें सेक्शन 21 अप्लाई नहीं करता. अगला सवाल, सेक्शन 21 अप्लाइज टू सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशन, executions, or all of them. Yes, question number 93. section number 21 किस चीज पे अप्लाई होगा? Yes, quick. section number 21 क्योंकि पार्टीज का इम्प्लीडमेंट, ट्रांसपोजिशन, नया प्लेंटिफ जोड़ना, पुराना डिफेंडेंट जोड़ना, उसको हटाना, सब्स्टिट्यूशन करना, एडिशन करना, सारी चीजें जो होती है वो सूट में की जाती है. एंड दैट इज व्हाई सेक्शन नंबर 21 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दिस सूट्स. ठीक है. 95th क्वेश्चन, easement rights under section 25 can be acquired by a tenant, a co-owner, both tenant and a co-owner, neither a tenant nor a co-owner. easement right कौन व्यक्ति एक्वायर नहीं कर सकता? तो ना तो टेनेंट करेगा ना कोई को-ओनर कर सकता है. इन दोनों का कोई अधिकार नहीं है इजमेंट्री राइट का, क्योंकि टेनेंट के साथ टेनेंसी का रिलेशनशिप है और को-ओनर जो है वो वैसे ही उस प्रॉपर्टी में मालिक है जैसा दूसरा व्यक्ति मालिक है. तो इजमेंट्री की बात नहीं आती है. नीदर द टेनेंट नॉर द को-ओनर कैन जनरेट देयर इजमेंट्री राइट्स. अगला सवाल, सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी, एक्सटिंग्विशेस द राइट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. Yes, section number 27 की बात हो रही है. It bars the remedy as well as it extinguishes the right of a person. Adverse possession का जो मतलब है वो यही है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, the limitation bars the remedy but does not extinguish the right का एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन नंबर 27 के अंदर रखा गया. अगला सवाल, section 27 of the limitation act does not extinguish the right in suit, appeal, execution, application, or all of the above. Section 27 does not extinguish the right in suits,
अपील्स, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन और ऑल ऑफ देम। यस, सोच समझ के, जल्दबाजी कोई नहीं है, सोच समझ के। देखो, आपने अगर एक प्रॉपर्टी को रिकवर करना था, आपका 12 साल का समय निकल गया, ऑपोजिट पार्टी के पास एडवर्स पोजीशन का राइट आ गया है, और एडवर्स पोजीशन का जब उसके पास राइट आ गया तो ना तो अब आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, और ना आप अपनी जो 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 आपका राइट है, वो राइट भी आपका जो एक्सटिंग्विश हो चुका है, ठीक है। तो आपकी कोई सूट या अपील मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट का एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं होता है कि मान लीजिए आपने एक व्यक्ति से प्रॉपर्टी की रिकवरी का केस किया, वो केस आपके बेनिफिट में आ गया, अब आपने एग्जीक्यूशन करवानी है, तो एग्जीक्यूशन को लेके सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट अप्लाइज टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन।